Assalamu alaikum. Students, our target for today is exercise of lesson number 4, end of the term by David Dishes. यकीनन आप लोगों ने लेसन की रीडिंग कर ली होगी, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट इसके क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करने का है। Question number 1 is, what was the Desh's attitude towards the weekend as a schoolboy? Why did he long for it? इसका आंसर क्या है? डेविड डेशिस इस लेसन के बिल्कुल शुरू में अपना एटीट्यूड जो एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि एक टीचर ने जो बुक लिखी थी फ्राइडे थैंक गॉड, ये फ्रेज़ उसके एटीट्यूड का कंप्लीट एक्सप्रेशन है कि जब वो स्कूल बॉय था तो वीकेंड या हॉलीडे उसको कैसा लगता था, यानी वो उसका हमेशा खुदा का शुक्रगुजार रहता था कि वीकेंड आता है। वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट? लॉन्ग फॉर इट, डिज़ायर फॉर इट, वॉन्टेड फॉर इट। वो क्यों छुट्टियाँ चाहता था? बिकॉज the grind of daily school work and the oppressive weight of the competition, severe competition among the students made him long for the holiday. So he always longed for a holiday. Question number 2. What was his general view of school life? अब स्कूल की लाइफ के बारे में उसका व्यू कैसा था? क्या वो कोई नालायक स्टूडेंट था जो हमेशा छुट्टी के इंतज़ार में रहता था? नो, दैट वाज नॉट सो. ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड हिज स्कूल वर्क वॉज ऑलवेज गुड. हिज स्कूल लाइफ वॉज एन आइडियल लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, बट इट लाइफ लुक्ड हर tiresome. This life looked her stressful life because there was a sense of stress on him. So his general view of school life was that it was a life full of the challenge of success and competition. What is question number 3? He liked holidays for their freedom. Freedom from what? उसको छुट्टियाँ अच्छी लगती थी आज़ादी की वजह से। किस चीज़ से आज़ादी चाहता था वो? जी बताइए, सोचिए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसे स्कूल लाइफ बुरी नहीं लगती थी. He did like the actual school homework. What did he dislike? He disliked the continuous study hours, long stretching study hours, and he disliked the sense of always never being able to relax. अब ये दो चीज़ें थी, उनसे वो फ्रीडम चाहता था. He wanted to relax and he wanted to enjoy the free time, leisure. That was why he always wanted holidays. Question number 4. How did he spend his summer holidays? छुट्टियाँ वो कैसे गुजारता? आया क्लियर कट हमें लेसन में बताया गया है उसकी छुट्टियाँ गुजारने का? नहीं, हम इसको सिर्फ रीडिंग करने के बाद जज करते हैं कि वो अपनी हॉलीडेज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर और ब्रदर के साथ यकीनन घर में एंजॉय करता होगा, वो छुट्टियाँ जो हर वीक होती थी. लेकिन लेसन के लास्ट में हम पढ़ते हैं कि जब समर वेकेशन होती थी, 2 months हॉलीडे, तब वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह से अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडेज स्पेंड करने किसी दूर दराज खुशगवार मुकाम पर जाया करता. So he might have used to spend his holidays with his family
with his friends, enjoying, fully enjoying, and the long holidays, summer holidays, summer vacation at some recreation spot, at some vacation spot. Wishes don't come true in this life, writes Dishes. What are the things he longed for, but he couldn't have? Yes. This sentence, wishes don't come true in this life, might be the thesis of this essay. यकीनन ऐसे का थीसिस क्या है कि ज़िंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। डेविड डिशिस सारी चाइल्डहुड किस चीज़ की ख्वाहिश करता रहा? ही लॉन्ग्ड फॉर अ ट्राइसिकल। लेटर दिस विश चेंज इनटू द विश फॉर a bicycle, but he couldn't get it. He got the first bicycle with the prize money he got at Edinburgh University. What was his other wish? He wanted to spend some money, and he wanted to buy some sweets. He wanted to buy some ice cream, but the small pocket money he did have, he had to put in the money box and save. That was why he didn't have anything practically to spend. He stood there at the outskirts of the crowd of boys around the ice cream stall or sweet stall and wished for the ice cream man to offer him some cornet or slider free. But this miracle didn't happen. But one wish that was successful, that came true. It was the wish for the holidays, which came. What did he do with his pocket money? पॉकेट मनी के साथ वो क्या करता? पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ कि वो पॉकेट मनी जो उसको, उसके ब्रदर को और उसके सिस्टर को मिलती थी, उन तीनों को वो मनी अपने मनी बॉक्स में डाल के सेव करना होती थी। तो प्रैक्टिकली और एक्चुअली उनको वो उसको खर्च नहीं कर सकते थे। ये रेस्ट्रिक्शन थी उन पे उनके पेरेंट्स की तरफ से। ये हमारे पास सैम्पल क्वेश्चंस थे। इस लेसन में इस तरह के लेसन से रिलेटेड किसी भी किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन पेपर में आपसे पुट किए जा सकते हैं। आपका जो है वो टारगेट क्या है कि आपने लेसन की रीडिंग अच्छी तरह से करके वर्ड के मीनिंग्स को अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है, ताकि आपकी वोकेबलरी का स्टोर हाउस इतना वास्ट हो जाए कि किसी किस्म का भी क्वेश्चन अगर आपसे पुट किया जाता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकें। इट्स ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।